students, welcome to Adishri Publication. In our today's class, we are going to see your chapter number 13, okay? And the name of your chapter number 13 is our shelter, okay? In this chapter, what concepts we are going to see? So let's see concept overview, different kinds of houses, special houses, keeping homes clean, shelter of animals, okay? And what are the curricular goals which we are going to discuss in this chapter? Understand the concept and need of shelter. What is the meaning of shelter and why we need shelter? We have to understand it, okay? Then identify different types of houses. We are also going to identify the different types of houses like kacha house, pakka house, stilt house, tent house, etc. Okay? Then recognize materials used for building houses, okay? In this chapter, we are also going to recognize those materials which we need for building our homes, okay? Now, all living things need a shelter to protect themselves. Our house is our shelter where we feel safe and comfortable. हम सारे living beings को घर चाहिए comfortable रहने के लिए, ठीक है? तो हमारा घर ही वो जगह है जो हमें comfortability provide करता है, ठीक है? A house is a place where we live together with our family members. It is a place where we eat, sleep and take rest. A house protects us from heat, rain, cold and other weather conditions. It also protects us from wild animals, thieves and robbers. तो घर ही वो जगह है जहां पे हम लोग अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ही सेफली और बहुत ही कंफर्टेबिलिटी के साथ रहते हैं, ठीक है? हमारा घर हमें हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे गर्मी से, धूप से, बरसात से, ठंडी से, इन सब से बचाता है. इसके अलावा घर हम लोगों को चोरों के अटैक से भी बचाता है, ठीक है? चलिए, early humans did not live in houses. They live in caves or on trees. Later, they started making simple houses. Today, people live in different kinds of houses depending upon climate of the place, material available and economic conditions. देखिए, early human beings के पास कोई घर नहीं होता था, वो गुफाओं में रहते थे, ठीक है? फिर धीरे धीरे उन लोगों ने सिंपल घर बनाना सीखा, ठीक है? अगर आज आप देखोगे तो बहुत टाइप के घर आप लोगों को अपने आसपास दिख जाएंगे, ठीक है? और घर बनाना भी डिपेंड करता है आप किस रीजन में रहते हो, वहां का कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहां पे कौन कौन से मटेरियल्स अवेलेबल हैं, ठीक है? Now, my dear student, we are going to see the different kind of houses. Okay, see, houses can broadly be classified into two categories. Okay, and houses are broadly classified into two main categories. Okay, they are kacha house and pakka house. Okay, so first of all, my dear student, we are going to see the concept of kacha house. What is the meaning of kacha house? Let's see. Kacha house. Okay, kacha houses that are made of mud, straw and bamboo are known as कच्चा houses. तो कच्चा हाउस क्या होता है? वो घर जो आपका मड का, आपके स्ट्रॉ का और बैम्बू का बना हो उसे हम कच्चा हाउस कहते हैं, ठीक है? द रूफ ऑफ कच्चा हाउस आर मेड ऑफ thatched straw, palm leaves और tin sheets, ठीक है? और इसकी जो छत होती है ना, ये पाम ट्री के लीव से बनी होती है या फिर टिन के शेड भी इस पे लगे होते हैं, ठीक है? These houses are not very strong. People living in villages and poor people in cities live in kacha houses. A hut is an example of kacha house. देखिए, ये जो घर होता है ना कच्चा हाउस, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. अब कच्चा हाउसेस को रूरल एरियाज में यानी गांव में ज्यादा देखोगे. साथ ही साथ शहरों में जो गरीब लोग होते हैं वो ये कच्चा हाउस बना के रहते हैं, ठीक है? जैसे झोपड़ी क्या है, हट क्या है, एग्जाम्पल है कच्चा हाउस का. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस. ओके, नाउ ब्रेन ब्लिट्स देखते हैं क्या है. इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे मुझे. What do we call an area in cities where people live in कच्चा houses? उस एरिया को क्या कहा जाता है, ठीक है? Where do early humans live? Early humans कहाँ रहते थे, ठीक है? Now we are going to see the concept of पक्का house. What is the meaning of पक्का house? Let's see. पक्का houses, strong houses made of bricks, cement, steel and concrete are called पक्का houses. तो पक्का हाउसेस क्या होते हैं बच्चों? जो आपके स्टील से, आपके आयरन से, ब्रिक्स से, सीमेंट से बने होते हैं, उनको हम पक्का हाउस कहते हैं, ठीक है? ऑल बंगलोज, फ्लैट्स इन मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट्स आर कॉल्ड पक्का हाउसेस. तो जितने भी हमारे बंगलोज होते हैं, हमारे फ्लैट्स होते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होते हैं. अब ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का क्या मतलब है? इसमें कई सारे लेयर्स होते हैं, मीन्स इसमें कई सारे फ्लोर्स होते हैं, ठीक है? तो अपार्टमेंट्स, these all are the example of our pakka houses. Then these houses mostly have flat roof made of concrete, ठीक है? इनकी रूफ कैसी होती है? इनकी रूफ पूरी की पूरी फ्लैट होती है, कंक्रीट की बनी होती है. ओके, so this is all about our pakka houses. Now apart from kacha house and pakka house, we also see some special houses. Okay, these special houses are built. Okay, these special houses are built according to the climatic condition of the region. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं.
There are several special kinds of houses that are found in particular areas. बहुत सारे special houses होते हैं जो कई सारे जगहों पे मिलते हैं, ठीक है. The different kinds of houses depend upon the climate of the place and the material available to build the houses. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. जो स्पेशल हाउसेस होते हैं ये क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं और साथ ही साथ उस एरिया में आपका कौन सा बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है. तो सबसे पहले जो स्पेशल हाउस है वो है हमारा कारवा एंड टेंट्स. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कारवा एंड टेंट हाउसेस? लेट्स सी. Gypsies and nomads do not live at one place. They keep on moving from place to place for their livelihood. Okay, they live in houses that can be moved from one place to another like karma and tents. देखिए जो nomads होते हैं ये कौन होते हैं? ये वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो अपने लाइवलीहुड के सर्च में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं. दे आर नॉट परमानेंट रेसिडेंसी ऑफ एनी प्लेस, ठीक है. ये परमानेंट कहीं नहीं रहते, ये हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है. तो जब ये लोग ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह से तो क्या होता है, इनके लिए इनका घर भी तो मूव करेगा. तो ऐसे लोग अपने घर भी ऐसा बनाते हैं जिसको वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करा सके. तो इन लोगों के लिए कारवा या टेंट हाउसेस होते हैं, ठीक है. कारवा का मतलब ये होता है, सी दिस इज कारवा. कारवा का मतलब ये किसी बस में रहते हैं या किसी बड़े व्हीकल में रहते हैं जो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह. और टेंट का मतलब होता है पीस ऑफ क्लॉथ है, ये इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं और जहां रहते हैं ये उसको वहीं पे बना लेते हैं, ठीक है. नाउ कारवा, सो हियर यू कैन सी द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कारवा. Carva are houses on wheels. They are mobile houses and can be easily moved from place to place. तो कारवा क्या होता है? ये व्हील्स के ऊपर बना होता है, मतलब ये व्हीकल्स के ऊपर बना होता है और एक जगह से दूसरी जगह आप इसको इजीली मूव करा सकते हो, ठीक है. Now what is the meaning of tent? See, a tent is made of canvases and can be pitched and folded easily. ठीक है, ये कैनवास का या पीस ऑफ क्लॉथ का बना होता है और आप इसको फोल्ड कर सकते हो, ठीक है. इवन आप इसको अपने पॉकेट्स में भी रख सकते हो टेंट्स को, ठीक है. They are also used by travelers and soldiers and are used in mountains, forests, deserts and campings. ठीक है, ये सिर्फ nomads है, gypsies इसको यूज नहीं करते, ये हमारे सोल्जर्स भी यूज करते हैं या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग करने जा रहे हो तो आप भी टेंट हाउस का यूज कर सकते हो, ठीक है. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ स्पेशल हाउसेस, स्टिल्ट हाउसेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिल्ट हाउसेस? लेट्स सी. In places where it rains a lot, people make houses on poles called stilt. So stilt houses built in those areas, my dear student, which area shows heavy rainfall, जहाँ पे बहुत ज्यादा heavy rainfall होता है, ठीक है. They do this to protect themselves from standing water, snakes, insects and wild animals. ठीक है, तो देखिए जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है तो यहाँ पे स्टिल्ट हाउस बनता है, मतलब यहाँ पे नीचे पिलर्स दिए होते हैं, ठीक है, उनका स्टैंडिंग पोल होता है, इसके ऊपर इनका घर बना होता है. तो ये घर इतना ऊंचाई पे क्यों बनाते हैं? ताकि ये पानी से बच सके, किसी भी तरीके के स्नेक बाइट से बच सके और इंसेक्ट बाइट से बच सके और वाइल्ड एनिमल से भी, ठीक है. प्लेसेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैव हाउसेस ऑन स्टिल्ट. तो हमारी कंट्री इंडिया में स्टिल्ट हाउसेस हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बनाए जाते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत ज्यादा बरसात होती है, ठीक है. चलिए, नाउ ट्रुथ बैंक, लेट्स सी. Houses on the mountain have sloping roof so that snow can slide off easily. जो घर हमारे माउंटेन एरियाज में बनते हैं ना, उनका जो स्लोप होता है वो स्लोप इस तरीके का, मतलब उनके जो रूफ होता है ना वो स्लोपिंग रूफ होता है, ऐसे होते हैं क्योंकि स्नोफॉल होता है. तो स्नोफॉल होगा तो अगर कोई चीज ऐसे है तो वो स्नो आराम से यहाँ से नीचे गिर जाएगा, ठीक है. Then the next type of houses which we can see that are houseboats. Okay, so houseboats क्या है? देखिए, houses that are built on boats and float on the water are known as houseboats. तो houseboats बच्चों वो घर होता है जो नाव के ऊपर बना रहता है और नाव कहाँ चलती है? पानी में, ठीक है. Such houses are commonly seen on the Dal Lake in Srinagar, Kashmir and the backwaters of Kerala. Okay, so such type of houseboats you can commonly see in Dal Lake. Okay, Dal Lake area of Srinagar, Jammu and Kashmir, and you can also see houseboats in the backwater of Kerala state. Okay, so you can see this is the example of houseboat. Now apart from a houseboat, another example of a special house, that is igloos. Igloos. Okay, so igloos, तो igloos क्या है आपके देख लीजिए.
These are houses made from blocks of ice and are found mainly in the region where there is snow all the year. तो इग्लू आपके स्नो से बने हुए घर होते हैं और ये वहां पाए जाते हैं जहां पे पूरे साल बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल होता है, ठीक है. Houses that keep changing location like the car tent houseboats are called portable houses. तो portable houses बच्चों वो घर होते हैं जो जगह जगह पे क्या होते हैं अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं, ठीक है. नाउ houses such as bungalow, apartment, huts, duplex houses, stilt houses, etc. are permanent houses. तो आपका बंगलो, अपार्टमेंट, हट ये क्या परमानेंट हाउस है, आप इसको मूव नहीं कर सकते, जहां बने ये वहीं रहेंगे. They cannot be moved or taken away to other places. Okay. Now, my dear student, we are going to see in what way we can keep our house clean. See, people should keep their houses clean. हम सब लोगों को अपने घर की साफ सफाई रखनी चाहिए. कैसे रख सकते हैं? Houses should have doors and windows with wire netting to allow fresh air and sunlight. It also helps keep flies, insects and mosquitoes away. हम लोगों को अपने घरों में विंडोज के ऊपर नेट लगाना चाहिए. उस नेट से हमारे घर में फ्रेश एयर और सनलाइट तो आ सकती है, लेकिन कोई भी इंसेक्ट या मॉस्किटो हमारे घरों में नहीं आ पाएंगे, ठीक है. फिर दूसरा तरीका है, Garbage should be put in enclosed bins and given way to the garbage collectors. Garbage घर का कचरा है हमेशा ऐसे डस्टबिन में रखना है जो प्रॉपरली बंद हो और हम लोग उसको गार्बेज कलेक्टर को ही हैंड ओवर करेंगे, इधर उधर नहीं फेंकना है. We should clean and mop the house every day. Mopping should be done using a disinfectant in water. हम लोगों को हमेशा अपने घर में झाड़ू और पोछा लगाना चाहिए, मींस अपने घर की मॉपिंग हमेशा करनी चाहिए. जब भी आप अपने घर में मॉपिंग करते हो तो यूज disinfectants. Okay, so you can see garbage is collected by garbage collector. Okay, now we should clean and remove cobweb every week. हमारे घरों में देखते हो ना मकड़ी अपने जाले बुन लेते हैं cobwebs, इन्हें भी हमेशा हटाना चाहिए. टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स शुड बी क्लीन्ड एवरी डे एंड केप्ट ड्राई. हम लोगों को हमेशा अपने टॉयलेट और बाथरूम को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, ठीक है. द ड्रेन्स शुड बी कवर्ड एंड केप्ट क्लीन. हमारे घरों में जो ड्रेन्स होते हैं ना, नदी सॉरी नाले जो होते हैं, उन्हें क्लीन रखिए और उनको कवर करके रखिएगा, ठीक है. वी शुड ऑलवेज कीप द सराउंडिंग ऑफ आवर हाउसेस क्लीन. और अपने घर के आसपास के सारे एरियाज को भी हमें क्या करना है, नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है. तो चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं शेल्टर ऑफ एनिमल्स. जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं वैसे एनिमल्स भी अपने घरों में रहते हैं, तो उनके घरों को क्या कहा जाता है देख लेते हैं. Animals also need a place to live in and to keep themselves safe. Some animals can build their houses while others live in man-made or natural houses. तो देखिए एनिमल्स को भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए घर चाहिए. कुछ एनिमल्स ऑलरेडी नेचुरल घरों में रहते हैं जैसे केव में, डेन में, ठीक है. और कुछ एनिमल्स मैनमेड घरों में रहते हैं, ठीक है. देखिए some wild animals like lions, tigers, deers, giraffe, elephant, zebra, etc. do not make their own home. They live either under the shades of tree or in cave. तो जो कुछ वाइल्ड एनिमल्स हमारे जैसे लायन, टाइगर, जिराफ, एलिफेंट, जेब्रा, ये कोई घर बना के नहीं रहते हैं, ये लोग नेचुरल घरों में रहते हैं, यानी जंगल में ही रहते हैं. जंगल में जो गुफाएं होती हैं या फिर ये पेड़ों के नीचे उनके छांव में रहते हैं, ठीक है. Some animals such as rats, rabbits and snakes live in the holes of burrows. Rabbits and rats make their houses. Snakes live in holes made by other animals. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो होल बना के रहते हैं, जैसे आपके जो रैबिट्स हैं वो बुरोज में रहते हैं, ठीक है. रेट्स और स्नेक्स आपके होल में रहते हैं, ये उनका घर है, ठीक है. Then tiny ants build a big ant hill with many tunnels made of mud. इस तरीके का जो आप देखोगे घर में हिली स्ट्रक्चर जो होता है जमीन पे, ये आंट हिल होता है, ठीक है. ये चींटियों का घर है, ठीक है. Then bee live together in bee hive. They make their bee hives from wax produced by them. These hives can be hanging on branches of trees. ठीक है. बी कहाँ रहती है, मधुमक्खी के छत्ते में, अपने छत्ते में बी हाइव कहा जाता है, ठीक है. ये बी हाइव आपको कहीं पे भी किसी भी पेड़ पे लटकता हुआ दिख जाएगा, ठीक है. नाउ स्पाइडर मेक अ वेब. स्पाइडर क्या करते हैं, वो अपना वेब बनाते हैं. सी दिस इज द पिक्चर ऑफ स्पाइडर वेब. Birds make their nest in trees or in other safe place. Birds अपना नेस्ट बनाते हैं, ये उनका घर है. A sparrow builds its nest in the corner of the roof, in the veranda, behind the wall hangers, wall mirrors, etc. हमारे घरों के वारंदास में देखते हो स्पैरोज अपना घर बना लेते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं, ठीक है. Then a crow chooses the top of the tall tree. क्रो कहाँ रहते हैं, जो पेड़ का जो सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा है, क्रो वहां रहते हैं. द पिजन लुक्स फॉर अ होल इन अ वॉल इन एन अनडिस्टर्ब्ड एरिया. पिजन्स अनडिस्टर्ब्ड एरिया खोजते हैं, वहां अपना घर बनाते हैं. द बुलबुल लाइक्स टू मेक इट्स नेस्ट इन द कॉर्नर ऑफ अ बुश. जो बुलबुल चिड़िया है वो
जो बुशेस होते हैं उसे कॉर्नर में एकदम अपना घर बनाते हैं, ठीक है। Then kites and eagles build their nest on very high trees or high rocks. जो kites और eagles होते हैं ना, ये अपना जो nest है ये बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे बनाते हैं, ठीक है। Then weaver bird's nest is knitted beautifully and hangs on branches of tall trees. A woodpecker lives in a small tree house. जो weaver bird होता है ये अपना जो इनका nest होता है सबसे खूबसूरत घर यही बनाते हैं अपना, ठीक है। woodpecker ट्री के होल में रहते हैं, वो ट्री पे क्या करते हैं, बार बार चोंच मार मार के होल करते हैं और ये उसी में रहते हैं, ठीक है। चलिए, डोमेस्टिक एनिमल्स विच लिव इन और अराउंड आवर हाउसेस आर फार्म्स लिव इन शेल्टर्स मेड बाय मैन। वहीं पे जो डोमेस्टिक एनिमल्स है ये ह्यूमंस के बनाए घर में रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे काउज एंड बफालोज आर केप्ट इन शेड्स, हॉर्सेस आर केप्ट इन स्टेबल्स, डॉग्स इन कैनल्स एंड हैंस इन कूप्स, ठीक है। तो हम लोग काउज और बफालोज के लिए शेड बनाते हैं, हॉर्सेस के लिए स्टेबल बनाते हैं, डॉग्स के लिए कैनल और हैंस के लिए कूप, ये इनके घर का नाम है, ठीक है। ये देखिए, then parrots, mynas, fish etc are pets. पैरट, माइना, फिश ये सब क्या है, हमारे पेट हैं, ठीक है। फिश आर केप्ट इन एक्वेरियम, फिशेस को हम कहाँ रखते हैं, एक्वेरियम में रखते हैं। पैरट्स एंड माइनास आर केप्ट इन केजेस, ठीक है। So this is all about the chapter, my dear students. Now come with me and let's see the quick recap of this chapter. All living things need a place to live. सारे living things को क्या चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए। A house is a place where we live together with our family. घर क्या होता है, जहां पे हम लोग अपने different family members के साथ रहते हैं, ठीक है। People live in different types of houses. We human beings used to live in different types of houses. House are built on stilt in places where it rains a lot. ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होता है वहां पे घर कहाँ बनते हैं, पिलर्स के ऊपर बनते हैं, ठीक है। इग्लूज आर बिल्ड इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, जहां पे बहुत ज्यादा हेवी स्नोफॉल होता है वहां पे आइस का घर बनाया जाता है, इग्लू नाम है उसका। पीपल इन माउंटेनियस रीजन बिल्ड हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स, जो लोग माउंटेन एरिया पे रहते हैं वो उनका घर का जो रूफ होता है वो स्लोपी होता है, ठीक है। Floating houses are also called houseboats. Floating houses को हम houseboats भी कहते हैं. So my dear student, this is all about the chapter. Now just go thoroughly through this chapter and complete the exercise portion. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.